produce safe and tasty product. Target market upper class, middle class, lower class, and all age group. Core competencies. The core competencies on which our company will be complete are taste and quality. Taste by consuming the yum chocolate flavor being to fill your mouth, the moment of chocolate being to melt on your tongue like butter, and it tastes like pure chocolate rather than cocoa powder, and it tastes like pure chocolate. At first tasting the chocolate, it may be difficult to focus on the specific of flavor. First precaution of consumer would describe for the chocolate as a chocolatey and yum quality. The raw ingredients are to finished quality, and also care is taken of the production process, roasting and crushing the cocoa beans and mixing the cocoa paste with sugar and other ingredients such as a milk. Yum chocolate has the sufficient as they are shiny brown, breaks cleanly and is smooth. Yum chocolate has the sufficient quantities of cocoa butter and vegetable fat so that it does not become greasy and sticky at the ambient from temperature. Ownership, our company will be a partnership firm. Our product, our company will be dealing in a manufacturing of three products. They are milk chocolate, fruit and nut chocolate, plain chocolate. Ingredients of milk chocolate: sugar, full cream, milk powder, vegetable fat, aluminum syrup, flour, and whole cow's milk, cocoa butter. Ingredients of nuts and chocolate: sugar, full cream, milk powder and resin, cocoa butter, cocoa mass, and almonds, vegetable fat, immersion flours. Ingredients of plain chocolate: sugar, full cream, milk powder, cocoa butter, and cocoa mass, vegetable fat, and immersion flour. Marketing plan. Economics. Our total size of chocolate market is 30,000 tons. Trained in a customer preference, the range and variety of chocolate available in mall seems to be growing day by day, which deal to lots of influence sales of chocolate companies. Chocolate which used to unaffordable is now considered mid-price. Branded chocolate have become more popular. Mithais is becoming the substitute of chocolate. Instead of buying sweets on Raksha Bandhan Diwali, people prefer to buy chocolate various to enter. Have a startup of cost, ensuring good quality product to the consumer. High level of competition from the well established brand to keep price of the product low as it is price sensitive market. Overcoming the barriers of entry to overcome the barriers of her startup cost and manufacturing and machinery would be taken for leisure for first few years of business. Marketing of our product would be on the basic good quality and health product to provide the competitive advantage. Permission and license. Following the permission of license required, business license and is a permission issued by the government agency that allowed to conduct business. License for preparing the holding of goods, obtaining identifying numbers, liabilities of insurance, part of the general insurance of risk, financing to protect the insured for law show sites, conductor permission and supervisor certificate. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, Pranchi. You have also copy pasted it from somewhere. अपना भी तो कुछ दिमाग लगाया करो ना यार, आप लोग क्या करते हो बच्चों?
कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो तो एटलीस्ट उसमें ये तो लगे कि आपका भी कुछ इनपुट है। एज इट इज जितनी कथा है सब बांच देते हो। इट्स ओके। नेक्स्ट। Someone can please take a screenshot. Okay, who is next? मैम कह रहे हैं Yes, ma'am. Nikita. Okay. यस मैम, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैम इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? आपने भी निकिता प्रेजेंटेशन प्रिपेयर नहीं किया है क्या? मैम किया है। इज माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस। मैम एक्चुअली जो असाइनमेंट था, आई मेड द रिटन असाइनमेंट, सो मैंने उसका कन्वर्जन किया था पीडीएफ टू पीपीटी में, तो वो इमेज फॉर्म में आया है, तो मुझे बस उसको थोड़ा सा एडिट करके उसमें हेडिंग्स वगैरह एडिट करने पड़ेंगे, तो वो अभी तो मैं उसको कन्वर्ट करके आपको मेरे लैपटॉप से भेज दूंगी। ओके, तो आपने उसको डायरेक्ट पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसको बनाने की मैम जहमत उसका नहीं उठाई। टेक्स्ट नहीं मैम, जो उसका टेक्स्ट है बस वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बाकी जो भी चीज़ें डालनी पड़ती है पीपीटी में वो मैंने उसमें मेंशन करा था, बट वो इमेज फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी, तो फिर मुझे उसका वो टेक्स्ट वगैरह भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं जस्ट उसको थोड़ा सा देख के मैं आपको मेल कर दूंगी। तो फिर क्यों आप लोगों ने ग्रुप में डाला था कि मेरा प्रिपेयर है, मेरा प्रिपेयर है, मेरा प्रिपेयर है? अब एक्चुअली मेरे when पास I जो was मैंने when I was asking about giving different topics, then why are you people saying that I have prepared my PPT, I have prepared my PPT? मैम आई जस्ट हैव माई टेक्स्ट रिटन इन माई रफ कॉपी एज वेल, मुझे बस वो उसमें पेस्ट करना था, तो वो और मेरा एक्चुअली अभी वर्क नहीं करा मैंने जैसा सोचा था वैसा, तो बस थोड़ा सा मुझे टाइम दे के उसको एक बार फेयर करना पड़ेगा। और आपने तो सिंपली जो है अपनी जो रिटर्न वर्क है उसी की पिक्स ले ली हैं। मैम ये जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया था ये वही है, तो मैं जस्ट जो मेरा कंटेंट है वो आपको प्रेजेंट करने वाली हूँ, उसको जस्ट मैं पीपीटी में कन्वर्ट करके आपको अभी मेल कर दूंगी जस्ट आफ्टर द तो प्रेजेंट। पीपीटी में कन्वर्ट करके मेल क्या होता है भाई? पीपीटी प्रेजेंट करने के लिए, दिखने के लिए सामने एक एक्टिविटी है जिसमें आप पीपीटी बनाओ और पीपीटी को प्रेजेंट करो। मेल करना क्या होता है? पीपीटी फॉर्म में पेस्ट हो गया था वो, तो मैं इसीलिए उसको कन्वर्ट नहीं, आप रहने दीजिए प्लीज निकिता, इस तरह से थोड़ी ना होता है। आप लोग इतना कैजुअली लेते हो, इतना कैजुअली लेते हो कि मतलब उसकी हद नहीं है। अब आप लोग को जो है ना 50% जब आपके जो है मार्क्स कटेंगे सबके, जितने लोग ये दिखा रहे हैं मुझे इस तरह से, तब आपको समझ में आएगा। आई विल मार्क यू इन 20 मार्क्स, ठीक है ना? 20 नंबर आपको, आप लोगों के मैं सीधे सीधे काट लूंगी। मैम एक्चुअली मेरे पास मेरा कल से लैपटॉप नहीं है, अदरवाइज कल से क्या होता है? ये कितने महीने, डेढ़ महीना हो गया इस एक्टिविटी को दिए हुए। हाँ जी मैम, वो एक्चुअली सारा कंटेंट उसी में है, तो मैं अभी उसको ओपन नहीं कर पा रही थी, जस्ट इसीलिए मैंने तुरंत उसको फोन से जो मेल पे मिला उसको कन्वर्ट कर दिया था, अदरवाइज पीपीटी मेरे पास लैपटॉप में नहीं, तो है। प्लीज रहने दीजिए आप। इस तरह से काम चलाने का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे क्या मतलब, क्या समझ रखा है आपने फैकल्टीज को? हमारे पास फालतू टाइम है आप लोग के लिए। वी डोंट हैव अदर टास्क कि हम लोग छुट्टी में भी शाम को भी सोचते हैं कि बच्चों का जो है, जो एक्टिविटीज हैं, जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो जाए, बाकी ना रहे। हाँ, तो सॉरी मैम, बट आई Okay, next. जस्ट नॉट हैविंग माय लैपटॉप, तो उस वजह से ये छोड़िए इशू हुआ है। निकिता प्लीज। नेक्स्ट। Ma'am, can I? यस, मजाक बना के रख दिया है।
मैम स्क्रीन शेयर हो रहा है आपको? यस। हाँ प्रोजेक्ट मैम just started on soda water मैम. Introduction. It is needless to आपने भी mention that सिमिलर what. पीडीएफ कोई प्रेजेंट कर दिया? नहीं मैम मैंने पीपीटी बनाया था मैम. मैं ये है मोबाइल से. आपका? यस मैम मैं मोबाइल से शेयर कर रहा था मैम. तो मोबाइल में पीपीटी ऐसा शेयर होता है? नहीं मैम उसको ऐसा भी कर सकता हूँ. सॉरी मैम. इसको मैंने पिन किया हुआ अभी कुलदीप सिंह। मुझे तो ये पीपीटी नहीं दिख रहा, मुझे तो ये पीडीएफ दिख रहा है। नहीं मैम पीपीटी से मैंने आपको पीपीटी से बना के सेंड किया क्योंकि लैपटॉप से करा मैम. ये स्लाइड्स हैं आपकी? स्लाइड्स ऐसे शेप में होती हैं? यस मैम मैंने पावर पॉइंट में ही बनाया मैम. हेलो. आप लोग किसको बेवकूफ बनाते हो भाई? नहीं मैम एक्चुअली मैंने सेम है मैम उससे ही बनाया है. पावर पॉइंट से बनाया मैम. मैम मैम पावर पॉइंट में ऐसी भी स्लाइड बनती हैं क्या? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं जरा मुझे बताएं। नो मैम. चलिए कुलदीप सिंह आप भी आगे बढ़िए, चलिए रहने दीजिए आप। ओके. नेक्स्ट, मतलब एटलीस्ट एक्सेप्ट तो कर लिया करो जो करते हो आप लोग। कुछ भी बोल रहे हो उसके बाद उसको ही जस्टिफाई किए जा रहे हो। पीपीटी ऐसे ही बनता है। आप कुलदीप सिंह राणा? मैम मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि नहीं, आप आइएगा यहाँ डिपार्टमेंट, कल आइएगा आप, कल नहीं अब मंडे को आइएगा, ठीक है? और मुझे इसी फॉर्म में पीपीटी बना के मेरे सामने दिखाइएगा पावर पॉइंट में, ठीक है? मैं आपको लैपटॉप में दिखा दूंगा अपने। हाँ ठीक है, तो अगर आप दिखा देंगे तो फिर मैं कंसिडर कर लूंगी आपको। ओके मैम। हाँ ओके मैम। नेक्स्ट मैम कैन आई? हु इज इट? मैम अंकित लखेरा। ओके Ma'am, I am audible? यस Good morning to all of you. I am Ankit Lakhera. Today's my presentation on SME funding requirements of capital. Introduction. The SME funding is The SME funding of small and medium-sized enterprise and represent a major function of general business finance market in which a capital for different types of firms are supplied, secured and costed or priced. Capital is supplied through the business finance market in the form of bank loans, overdrafts, leasing and hire purchase arrangements, equity corporates, bonds issues, venture capital or private equity, asset-based finance such as factoring and invoice discounting, and government funding in the form of grants of loans. Now, SME raise capitals. Capital is money or resource set aside for a specific purpose, usually starting or expanding a company. All business, regardless of their size, need capital to offset
daily running costs, building instruction or marketing, research and development, customer acquisition, among others. Large companies often have many options open to them as far as financial banking is concerned. However, small and medium enterprises securing conventional finances can be great challenge and could in their death. Luckily, there are few alternatives through which SME can raise capital, as discussed below. First is bootstrapping, second angel investing, third is venture capital firms, fourth one is crowdfunding. Now, bootstrapping. This is the act of funding the business from your personal finance. This includes saving income from other investment and pensions. This method is ideal starting point for new ventures, especially if market validation of their products or service yet to be done. The advantage of this method is that owner of SME has complete वो उधर ही control. है उसी It साइड. could also use to convince investor to get board since they demonstrate the owner's confidence and commitment of the business. The second one is angel investing. This is having successful entrepreneurs and or corporation committing their fund to your business for potential future gains. They are willing to invest at a startup or early growth stage in exchange for equity in the venture. They could be friends or family members, but are most strangers interested in helping new companies with innovative ideas to bring them to fruition. Third one is venture capitals firms. These are firms that have done market proof and have initial revenues and injected a substantial amount of capital into an SME. In exchange, they get equity in the company, which means a seat in the board and say in the activities of SME. Uh, in some instance, the injected capital can be structured as convertible debt. Successful example of an SME that pursued venture capital funding in Safaricom backed logistics company Sandy, which has just completed at $2 million funding series. Some venture capital firms Keynes SMEs can consider are the last one is crowdfunding. This is practice raising of capital by getting a small contribution from the public, usually via an online or mobile-based platform. The contribution then receive some sort of reward from the business, which could be gifts, discount, or even equity. This is still a new concept of Kenny, but we have some inspiring success stories such as Enda, Kenya's first running shoes brand, which raised USD 128 and 187 on Kickstarter. Example of locally accessible crowdfunding platform are Mchanga, 1% Club, Kickstarter, Real Gogo. Thank you. ओके अंकित, जितना आपने रीड किया है बेटा, ये आपको खुद समझ में आया है कि क्या है ये? यस मैम, एसएमई फंडिंग और उसकी तो आपने रिक्वायरमेंट जितने टाइप्स बताए हैं फंडिंग के, यस तो मैम। उनका जरा एक लीस्ट बताइए, मतलब हर एक फंडिंग की का मीनिंग क्या है, मतलब आप अपने वर्ड्स में बताइए कि आपको क्या मैम, समझ में आया. यस मैम, यस मैम। मैम डिस्प्ले भी करते जाइए, ठीक है? ओके मैम। मैम एसएमई रेज कैपिटल जो फंडिंग है इसमें स्मॉल मीडियम इन्वेस्टमेंट की इंटरप्राइजेस की, ये उनके फाइनेंशियल जो कैपिटल है वो रेज कैसी होती है, इसमें
4 प्रकार से बताए गए हैं: बूटस्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टिंग, वेंचर कैपिटल फर्म्स एंड क्राउड फंडिंग। इसमें जो पहला है बूटस्ट्रैपिंग, इसमें बताया गया है कि पर्सनल फाइनेंस जो अपनी सेविंग्स हैंगी वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जो भी पेंशनर्स है वो अपनी पेंशन सेव करके अपना कंट्रोल करके इस चीज का एडवांटेज दे करके इसमें इंटरप्रेनर बनते हैं। देन सेकंड है एंजल इन्वेस्टिंग। दिस इज हैविंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। ये एक सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो फ्यूचर में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और इसमें अपना फैमिली का सपोर्ट इन्हें मिलता है जिससे वो बहुत पैसा अर्न करते हैं। देन थर्ड वन इज वेंचर कैपिटल फर्म्स। इसमें कंपनी से एक्सचेंज किए हुए पैसे और इसमें शेयर्स यूज किए जाते हैं और कंप्लीटिंग द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ हिज बिजनेस। देन लास्ट वन इज क्राउड फंडिंग, जहां पर हम अपने मोबाइल के यूज करके जो मोबाइल प्लेटफॉर्म का एक सही इस्तेमाल करके हम अपना किक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज कल अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह में जो हम अपना जो भी प्रोडक्ट है हम अगर उसमें बेचना चाहे तो एक किक स्टार्ट इसमें मिलता है, एक मोबाइल द्वारा प्लेटफॉर्म हमें मिलता है। ये जिसके एग्जाम्पल दिए गए हैं एम चंगा, 1% क्लब, किक स्टार्टर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आगे जाकर के सक्सेस हुए हैं। थैंक यू मैम। Okay, thank you, Ankit. Please take your screenshot. Next. मैम Yes. सॉरी मैम, वो एमएस वर्ड का था प्रेजेंटेशन। एक्चुअली मैम मैंने आपके मैसेज देखे, वो एमएस वर्ड में बनाने को बोला था आपने प्रेजेंटेशन, इसलिए वो मैं थोड़ा वो हो गया था, लॉन्ग चला गया था। मैंने एमएस वर्ड में बनाने को बोला था प्रेजेंटेशन। यस प्रेजेंटेशन कभी एमएस वर्ड में बनता है क्या? नहीं, मतलब प्रेजेंटेशन मैंने बोला था कि एमएस वर्ड, हाँ यस मैम, मैंने बोला था कि उसको टॉपिक जो है वो लिखना है। फर्स्ट सीसी जो था वो टॉपिक लिखना था और सेकंड जो सीसी था उसका पीपीटी बना करके उसको प्रेजेंट करना था। यस मैम। तो आपका दूसरा सीसी तो नील हो जा रहा है। सॉरी मैम, अभी तक ऐसा हुआ नहीं मगर अभी हो रहा है क्योंकि एक्चुअली मैम क्योंकि मेरा कल ही सिस्टर की वेडिंग थी, तब तक ऐसा कुछ मिला नहीं, अभी बोल रहा नहीं, हूँ। कल सबके यहाँ प्रॉब्लम हो गई जबकि ये 1.5 महीने पहले दी हुई एक्टिविटी है ना। यस मैम। कल किसी का लैपटॉप खराब हो गया, कल किसी की सिस्टर की वेडिंग हो गई और जिस प्रेजेंटेशन चल रहा था तो कम से कम 4-5 लोगों के मैसेज आए कि कल हमारे भाई की शादी है, सबके भाई की शादी होने लग गई। नहीं मैम, मेरा तो सीरियसली वाला था ना, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा था। तो आपने पहले से इन्फॉर्म किया था मुझे? इतनी जब चांसेस आई प्रेजेंटेशन की तो क्यों नहीं आपने प्रेजेंट किया? आपने एक बार भी इन्फॉर्म किया कि नहीं मैम मेरे यहाँ प्रॉब्लम है या मैं बहुत सीरियस वाला प्रॉब्लम है मेरे पास? नो मैम, इन्फॉर्म तो लास्ट चांस जब निकलने वाली है तो आपके पास सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। तो अब सीरियस प्रॉब्लम है तो क्या करोगे आप? भुगतना तो आप ही को पड़ेगा। जब आप इन्फॉर्म नहीं करोगे, कोई किसी को कुछ मतलब नहीं रहता है, टीचर प्रेजेंटेशन ले रहा है, 4 लोग जुड़ रहे हैं, 4 लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी लोग आराम कर रहे हैं घर में। पहली बार ही हुआ ऐसी गलती, ऐसा नहीं हुआ कि मैम पिछली बार मेरा ऐसा, पिछले सेमो में भी ऐसा कुछ रहा मेरा, तो इसलिए मैम कर लीजिए ना, कंसिडर कर लीजिए। नहीं तो आपने पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? 4 दिन तो प्रेजेंटेशन हो चुके हैं ना, तो आपने एक भी दिन इन्फॉर्म किया कि मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन? तो मैंने परसों ही नर्सों मैसेज दे दिया था मैम, आप मतलब पर्सनली नहीं, ग्रुप में दिया था। नेक्स्ट। एनीवन इज रिमेनिंग विद हिज और हर वाइवा? यहाँ पे जो लोग हैं, सॉरी प्रेजेंटेशन। Yes, ma'am. कार्तिक, यू आर नॉट अलाउड। Hello. यस। मैम बट वो एक्चुअल में गलती से हुआ था। तो ऐसी गलती होती क्यों है?
मैम वो असल में मैम इतने सारे ग्रुप से मैम मैं कंफ्यूज हो गया था। So while doing your class, why you are doing that type of things? Why you are involved in that type of activities? कि आप जो है इधर उधर जो है इमोजीज भेज रहे हो, हार्ट भेज रहे हो, और वो भी ग्रुप में डाल रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? मैम वो गलती से असल में मैम मैं दूसरे ग्रुप में मेरे को भेजना था, वो एक्चुअल में वो ग्रुप में चला गया था। और मैम मैं अभी तक तो मैम मैंने आपको उसी फर्स्ट टाइम क्यों, दूसरे भी ग्रुप में आपको उसी टाइम क्यों भेजना था? उसी टाइम क्यों भेजना था? वो कोई ऐसी मैंडेटरी एक्टिविटी तो था नहीं, थी नहीं कि किसी को आप दवा बता रहे थे या कोई बहुत ही सीरियस था और आप उसकी हेल्प कर रहे थे। So why you are distracting yourself as well as your other friends also, and you have destroyed the rhythm and the mood of your teacher also? आखिर में मैंने वो चैप्टर छोड़ दिया ना आधा। आपने मेरा मूड इतना खराब कर दिया जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने क्लास बीच में छोड़ दी हो। आर्ग्यू कर रहे हो उसके बाद आप, नहीं मैम गलती से हो गया, गलती से क्यों हो गया? आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। मैम आर्ग्यू नहीं, मैं तो अपोलोजाइज कर रहा था मैम। ये जो आप लोग अपोलोजाइज करते हो ना, ये अपोलोजाइज जो है जब आपके साथ कोई करेगा ना तब आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग जो भी मुझे सब्जेक्ट असाइन होगा तो मैं आप लोग को दे दूंगी कि आप लोग इतने वेल एजुकेटेड एंड वेल अवेयर हो कि आपको सब आता है, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है पढ़ने की, और आप लोग खुद से पढ़ लेना, ठीक है? टीचर्स की आपको कोई जरूरत नहीं है। कभी क्लास में नहीं आना, पहले दिन क्लास ज्वाइन की आपने और उसके बाद इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन वहां खड़ा किया। वैसे ही आप लोग डिबार हो, कितने लोग हो ना जो कभी क्लास नहीं की, वैसे ही डिबार हो। दे भी तो प्रेजेंटेशन तो क्या मार्क्स थोड़ी ना दूंगी मैंने तो सर ने बोला था ना वहाँ पे क्लास में कि जितने लोग आए नहीं क्लासेस में आप लोग को सीसी में बिल्कुल आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। मजाक समझ रखा है आप लोगों ने। एलएम की कितनी क्लासेस अटेंड की है आपने? मैम कौन से सब्जेक्ट की? दोनों सब्जेक्ट की। मैम की नहीं। तो की नहीं तो बस छुट्टी, आराम करो। सीसी से गायब हो, एंटरप्रेन्योरशिप में भी गायब हो और उसमें भी गायब हो। यस आशीष, स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। यस मैम। Ma'am, is my screen visible? यस। Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good morning, good afternoon, guys. This is Ashish Mishra, and my project plan is on plywood traders. Trader. A trader is a person who either buys good or resell them. Like a merchant who runs a store, a person who buys and sells stocks and bonds. Plywood. Plywood is a material manufactured from a thin layer of piles of wood veneer that is glued together with adjacent layer having their wood grain rotated up to 90 degrees to one another. It is an engineered wood, MDF, medium density firewood, or OSD oriented string board and chipboard particle board. Types of plywood: softwood, hardwood, tropical wood, aircraft, decorative, flexible, marine. It is available in different type of grades and different type of thicknesses like MR grade, BWR grade, shuttering plywood, block boards. It is available in 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, and till 25 mm. And like otherwise, every product is available. What is the uses of plywood? In structural items, plywood can be used for partition, floor, ceiling, and sheeting. It is also used for decorative purpose, both in exterior position such as cladding and doors, and internally as cabinet, shelves, and furniture. Steps to start a business: a perfect business plan, funds to start a business, a prime location to open a business, construct and proper building to keep your stocks, get an authorized permits and license before opening a business, contact dealers, wholesaler, retailer, or you can directly contact to the factory for stocks to sell in your business. Get your GST number for business to pay taxes.
After starting your business, you can start promoting your business. Sole proprietorship registration, hiring employees for business. Purpose, its main purpose to increase the stability over standard wood, meaning meaning it says true through temperature and moisturizer change. High impact resistance can help with short term overloads. Incredible strength with weight ratio, highly resistant to chemical and can depending on the type be very moisturizer and resistant. Attracting customer to your business, offer new customers discount and promotion, ask for referrals, recontact old customers, network, update your website, partner with complementary businesses, promote your expertise, take advantage of online ratings and review sites. Risk in business, the economic risk is constantly changing, the market fluctuate. Complications risk, business owners face an abundance of laws and regulation with which they need comply. Security and fraud risk, financial risk, reputation risk, operational risk, competition or comfort risk. Summary, we have said it about and we will repeat it here. When you start your business, it is a smart idea to start a small and focus on specific one. Once you will build your expertise in market, then you can expand and move it to another level. You will also have to create different strategies to compete the rivals in the market. You have to be smarter than your rivals to get the result you want. Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू आशीष। मैम मैम मैंने स्क्रीन शेयर बंद कर दिया है। क्या मैं मतलब वापस पीडीएफ चालू करके वो पीपीटी चालू करके स्क्रीनशॉट लूं? हाँ, ले लीजिए। ओके, करण, कैन यू टेक दी स्क्रीनशॉट? Yes, take care. ओके, थैंक यू मैम। ओके, हु इज नेक्स्ट? शादाब, आर यू प्रेजेंटिंग योर टॉपिक? शादाब, शादाब आपको नहीं प्रेजेंट करना है? यू आर विलिंग टू बी एब्सेंट इन सेकेंड सीसी? नो मैम, मैं सिर्फ देखने के लिए आया था। तो आप प्रेजेंट करने के लिए कब आएंगे? प्रेजेंट नहीं करना है आपको टॉपिक? ओके, सत्य प्रकाश का हो गया है, रेशु का हो गया है। रेशु आपने दे दिया है ना? रेशु, प्रांशी का हो गया है? नहीं, प्रांशी का तो मैंने कैंसिल कर दिया। बप्पू का हो गया है। निशाल आपने दे दिया है ना? लास्ट टर्न पे दिया था आपने? यस मैम। ओके, कुलदीप का कैंसिल्ड है, कार्तिक का कैंसिल्ड है, करण मैम यस कैंसिल। हाँ, टुडे वाज लास्ट चांस फॉर योर प्रेजेंटेशन। यस मैम, तो मैंने प्रेजेंटेशन तो दिया है। अच्छा, प्रांशी ने दिया है? ओके, यस मैम। हाँ ठीक है, योर नेम इज देयर। नहीं, प्रांशी का नहीं, मैंने किसी और का, निकिता का कह गया था कैंसिल मैंने। निकिता चीरा प्रेजेंटेशन इज कैंसिल्ड। अमित आपका हो चुका है पहले, है ना? अंकित का हो चुका है, आशीष का हो चुका है। कार्तिक, Yes, ma'am. क्या है आपकी मंशा? आप ऐसे ही बने रहोगे लाइफ टाइम या आप कुछ सुधरने की कोशिश करोगे? मैम मेरे से मैम वो गलती हुई थी और मैम मैं उसके लिए अपोलोजाइज भी कर चुका हूँ मैम। और मैम मैं ऐसा नहीं हो कि मैम मेरे से कभी रेगुलरली ऐसे हमेशा गलती हो मैम, वो तो फर्स्ट टाइम हुआ था। और आप मैम बाकी भी टीचर से पूछ सकते हो, कभी मैम हुआ ही नहीं ऐसा आज तक। तो आप क्लास में ही नहीं आओगे तो होगा क्या? मैम एक्चुअली मैम मैंने मैम वो इस बार मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया है तो मैम इसलिए मैं वहाँ पे बिजी रहता हूँ।
तो आपने एक बार जहमत उठाई कि टीचर्स को से कंसर्न लिया जाए या कंसर्न टीचर से बात की जाए? नो मैम। तो फिर हमें क्या पता, आप तो थ्रू आउट एब्सेंट रहे हो, 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी, तो आप तो वैसे ही डिबार हो जाते हो। स्टूडेंट्स हु इन्फॉर्म देयर टीचर्स कि हाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम है या कुछ है, तो वी कंसिडर देम, अदरवाइज वाई आई विल कंसिडर यू, जबकि आपने मुझे पहले से कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया। आप मतलब बहुत मेहनत से आप लास्ट क्लास में अपेयर हुए, आपने एक स्पेशल अपेयरेंस दिया और उसमें भी आपने बिल्कुल ही स्पेशल अपेयरेंस दे दिया कि वो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। हाँ, और उसके बाद आपका जो एटीट्यूड एंड टोन है उसमें कहीं भी मुझे कोई भी मतलब वो नहीं झलक रहा है कि आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना था। आपको मैंने कर तो दिया था अपोलोजाइज। मैम मैंने सॉरी तो बोल रहा हूँ। इन फ्यूचर मुझे इस तरह की अगर कोई भी हरकत दिखी वापस से, तो फिर दैट विल बी योर लास्ट चांस इन माय क्लास, जो भी रहेगा। और अगले सेमेस्टर में आप इंश्योर रहिए कि आप क्लासेस में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है? ओके मैम, सॉरी मैम। मैम कैन आई गिव माय प्रेजेंटेशन? ओके। ओके मैम। Ma'am, screen is visible. Yes, it's visible. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everybody. My topic is investing advisor. So basically, what is investing advisor? Investing advisor are referred to as stockbroker. There are individual or groups of individuals that offers investment recommendation by analyzing the recent performance of securities. तो बेसिकली जो इन्वेस्टिंग एडवाइजर रहता है वो आपका जो कैपिटल रहती है वो ग्रो करने में आपको एडवाइस देता है, और वो शेयर मार्केट के थ्रू शेयर्स इक्विटी बाय करके आपका जो कैपिटल रहेगा वो ग्रो करेगा, उसके पिछले चार्ट्स वगैरह और जो सिक्योरिटीज रहती है उन सबको स्टडी करके। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग एडवाइजर? पर्पस इन्वेस्टिंग एडवाइजर का रहता है मेनली जो आपको मार्केट में रिटर्न्स मिल रहे हैं, कंपेयर और एफडी वगैरह जितने भी रिटर्न्स रहते हैं बेसिकली उन सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिलाने के लिए। जैसे मार्केट में अभी बैंकिंग सेक्टर्स में आपको एफडी वगैरह में 6% रिटर्न्स मिल रहे होंगे मैक्स टू मैक्स, और सेविंग्स अकाउंट में 4% मिल रहे होंगे। तो मेन पर्पस जो रहता है कि आप को 9 to 10% रिटर्न्स पर ईयर दिलाने का पर्पस रहता है इन्वेस्टिंग एडवाइजर का। मार्केट एनालिसिस, marketing analysis forms an illegal part of a business, integral part of the business. So does with the business plan, the part of the business plan should be focused on determine the potential of your product or services. मार्केट एनालिसिस ये रहता है कि मेनली कस्टमर आपके पास क्यों आएगा, मतलब आपके अगर जो बिजनेस प्लान, आपके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप जो प्रोवाइड करते हैं वो एफिशिएंट ही नहीं होंगे तो वो आपके पास बेसिकली कस्टमर आएगा ही क्यों। तो आपका पूरी रिसर्च करके स्टडी और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि कस्टमर आपके पास खुद से आए। लोकेशन, मोस्टली जो एडवाइजर्स रहते हैं वो उनका एक स्पेशल एक ऑफिस रहता है जहाँ पे वो अपनी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, और अगर उनका ऑफिस ना भी है तो वो वेबसाइट के थ्रू अपनी प्रमोशन वगैरह कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, और ब्लॉगिंग के थ्रू भी लोगों को तक अपना कंटेंट पहुंचा सकते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी, मार्केट इन इंडस्ट्री कंपटीशन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बेसिकली इन्वेस्टिंग में आजकल काफी दुनिया बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है उसमें, इसलिए काफी लोग इन्वेस्टिंग एडवाइजर्स भी बन रहे हैं। तो उसमें कंपटीशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, मतलब हर एक इंसान आजकल सोचता है कि उसका जो मनी है वो क्यों ना उसका कैपिटल ग्रो होए, तो इसलिए मतलब काफी लोग इन चीजों में
इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर जब तक आप अपने कस्टमर को ही सेटिस्फाई नहीं करोगे तो मोस्टली कस्टमर आपके पास वापस आना नहीं चाहेगा। अगर बाय चांस वो एक बार आके आपकी फीस भी प्रोवाइड कर देता है और वो आपका 1 मंथ के लिए आपका देखता भी है मार्केट में आपका कैपिटल ग्रो हो रहा है, और अगर ऐसा रहा तो वो आपके पास कंटिन्यू करेगा, आपका सब्सक्रिप्शन जो रहेगा वो प्लान वगैरह लेगा। बट अगर वो एक बार देखेगा कि आप उसको लॉस प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी जो कैपिटल है उससे भी नीचे जा चुकी है, तो आपके पास रहेगा ही क्यों। तो मेनली कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान, मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान मीन आप मार्केटिंग कैसे करते हो, आप अपने जो उसकी इन्वेस्टिंग की रहती है, मतलब आप मार्केटिंग कैसे करोगे पूरे मार्केट में, और उसको मतलब आपको एडवर्टाइज करनी पड़ेगी। आप एडवर्टाइज सोशल मीडिया में कर सकते हो, वेबसाइट बना के कर सकते हो, आप इंडिविजुअली मैन टू मैन टॉक करके कर सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो, और बाकी आप मार्केट में अलग अलग जगह जाके एडवर्टाइज कर सकते हो, बैनर्स वगैरह लगा करके, और इससे आपकी जो सेल्स रहेगी वो इंक्रीज होगी। फाइनेंशियल्स, तो कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उसके लिए आपको कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि आपको एक ऑफिस तो एटलीस्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा या एक वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो मेनली फाइनेंशियल्स आपको एक मिनिमम अमाउंट, जितना भी अगर आपको इसे वेबसाइट क्रिएट करनी है तो मिनिमम अमाउंट 6,000 अप्रोक्स लगता है, और अगर आप एक ऑफिस कर रहे हैं तो आप उसको रेंट पे लेके रिनोवेट वगैरह करके आपको उसके लिए भी फाइनेंशियल्स और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू मैम। Okay, thank you. No one is left with his or her presentations now. Ma'am, can I take a screenshot? I have taken Karthik. Okay, thank you. Okay, thank you. I am winding up the class. Have a nice day ahead. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. क्षम कर तुमका। हमें व्हाट्सएप में आ Karthik. और